for your final step to your cat. And here comes the question number one. Without wasting time, let's move it. And question number one on your screen. Quickly answer. A warm welcome to all of you here present, one and all. Let us see how many of you today get 10 out of 10 right. Last 30 seconds. Vicky Khandelwal 30 seconds. Himanshu Garg, right. So guys, absolutely right. The answer is going to be 30. Concept पकड़ते हैं क्या है, क्या concept है हमारा जो element आएगा. So we want to take subset of T such that sum of no two elements is 470. Maximum possible element. So if we see how many elements are there in total here. So from 3 to 367, let us see how many elements are there. Minus 3, it becomes 464 divided by 8, which comes out 58 plus 1. So 59 items are here in total. So we want that there shouldn't be any element whose sum is equal to 470. Sum of 2 should not be 470. So either I will take 3 or I will take 467. I will take one out of these two, right? I'll take one out of these two. And in a middle way, there will be a number which will be, let us say 29, 30th number, right? Because there are total 59 numbers. So that number will be 235. So this 235, this number is going to be 227 and this number will be 243. So we will choose one out of these two. But as 235 doesn't make pair with any other number, so this can be taken very safely, right? So what we can say is these 29 numbers plus one number, so 30. So 30 and this should be done very well in 60 seconds, right? ये क्वेश्चन 60 सेकंड से पहले हो जाना चाहिए था क्योंकि इस क्वेश्चन में ज्यादा नहीं. बट इस क्वेश्चन में गलती क्या करते हैं, बहुत सारे लोग 29 आंसर कर देते हैं, वहां पे गड़बड़ हो जाता है. कुछ लोग 31 आंसर कर देते हैं, वहां गड़बड़ हो जाता है. यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. इट इज 30. So let's go to the question number. Okay, here comes the question. Yeah, series. Yeah, here comes the question. Let's see how many of you can answer that too within time. देखो यार, क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है,
ठीक है, क्वेश्चन की भावना को समझना है, कुछ भी नहीं है। देखो आप इस शो में देखिए कि भाई आप में से कोई भी बंदे ने इसका आंसर सही जवाब नहीं दिया, इसका सही आंसर नहीं दिया, राइट। सो छोड़ने वाला क्वेश्चन है, देखते हैं भाई। देखो सो ये P है consisting of 1998 numbers, okay? A be the average of these elements, right, in P. So A इनकी average हो गया. B be the twice the average of first 1998 natural number. So it will start with 1, 2, 3, 4, 5, tuck, 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 1998. As this is twice the average, so I will just double it. 2, 4, 6, 8, 10 up to 1998 into 2. So this is also the same series, same gap. Now number of terms is also same. The gap between the average term, B, A minus B is the term of this and term of this. So this is minus 5 minus 2. So minus 5 minus 2 is equal to minus 7. Answer. बताओ भाई क्या इसमें रॉकेट साइंस आया? अनमोल सरना, वेरी गुड, -7 शुड बी द आंसर, राइट। अब हम पता नहीं इसकी एवरेज निकालने में लगे हुए थे, आप लोगों ने इसका एवरेज निकाला होगा, फिर इसका एवरेज निकाला होगा, फिर उसको डबल किया होगा, फिर उसका डिफरेंस लिया होगा। अगर ऐसे करेंगे तो क्वेश्चन बहुत लंबा हो, हम समय चिंता नहीं करता, कॉन्सेप्ट पकड़ में आना चाहिए। अगर आपके कॉन्सेप्ट पकड़ में आ गया तो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही उम्दा, राइट। और ये वो क्वेश्चन है जो है कुछ नहीं है, राइट। बट क्या होता है कि पेपर में, क्वेश्चन में, हाँ, और वो वैसा रिदम नहीं बनता और क्वेश्चन गड़बड़ हो जाता है। ठीक हो गया, ओके। लेट्स गो टू वन मोर क्वेश्चन। आई होप यू गॉट दिस क्वेश्चन। ये कॉन्सेप्ट नोट कर लीजिए कि अगर मेरा एवरेज दो सीरीज का जो भी उनका डिफरेंस होगा, राइट, इंडिविजुअल एलिमेंट्स का वही डिफरेंस मेरा एवरेज का होगा, एवरेज विल हैव द सेम डिफरेंस। और हम ऐसा भी कह सकते हैं, एवरेज इज एडेड टू एवरेज देन एवरेज रिमेन्स एवरेज। एवरेज में एवरेज डालने से एवरेज एवरेज ही रहती है, गधों में गधा डालने से गधा गधा ही रहता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से, नॉन नेगेटिव रियल रूट्स, नॉन नेगेटिव रियल रूट्स। फास्ट एंड फास्ट, पहले दो क्वेश्चन हो चुके हैं, राइट। और अभी तक के जो 16 एपिसोड्स हो चुके हैं उसमें अप्रोक्सीमेटली 160 क्वेश्चंस वी हैव कवर्ड। दीज आर ऑल मस्ट डू क्वेश्चंस फॉर योर एग्जामिनेशन कॉल्ड कैट। ध्यान से बेटा देखो, 1 और 2 में गड़बड़ हो जाएगी, कुछ लोग 1 बोल रहे हैं, कुछ लोग 2 बोल रहे हैं। लास्ट 40 सेकेंड्स। नॉन नेगेटिव है भाई, देखो नॉन नेगेटिव सॉल्यूशंस देखने का है। हाँ देखो भाई, नॉन नेगेटिव पूछा गया है ना बेटा हमसे, तो देखो ये कैन बी राइट 2x इज इक्वल टू x प्लस 1। यहां से अगर हम x इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो 1 आ जाता है, दूसरी साइड 1 आ जाता है, ठीक है। x इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं, ये भी 2 और 2 हो जाता है। अब जब मैं x इज इक्वल टू 2 पुट करूंगा, इफ आई विल पुट x इज इक्वल टू 2, इट विल बिकम 4। तो ऑब्वियसली ये ज्यादा तेज भागेगा x इटसेल्फ से, हाँ, इससे ये तेज भागेगा। सो दिस विल बी, यू विल हैव 2 रूट्स, दो रूट बनेंगे इसके, ठीक है। अब अगर इसको करना भी चाहते हो, इसका ग्राफ ड्रॉ करके भी कर सकते हो, क्योंकि x प्लस 1 विल बी ए लीनियर ग्राफ, राइट। ये ऐसे x प्लस 1 लीनियर ग्राफ आएगा, और 2 रेज टू पावर x जो आएगा आपका, वो आई थिंक ये ऐसे ग्राफ बनेगा, ऐसा ग्राफ बनेगा,
है। सो 2 raised to पर x, x कितना भी छोटा होता जाए, सो नेगेटिव तो आएगा नहीं, ये ऐसे बनेगा आई थिंक, और ये ऐसे, कुछ ऐसे ग्राफ बनेगा आई थिंक, लेट अस मेक इट लाइक दिस, ऐसे ऐसे ग्राफ बन सकता है, ठीक है। क्योंकि आप देखिए ना कि अगर एक कर्व है, एक स्ट्रेट लाइन है, तो मैक्सिमम 2 पॉइंट्स ही टच हो सकते हैं, और दो हमारे आ गए हैं, बाकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर दो कर्व होते तो हमारे दो होते, वो कर्व कितनी पावर वाला है वो भी देखना पड़ेगा, ठीक है। एक्सपोनेंट का ग्राफ, और ये कहाँ कट करेंगे, ये दो ही पॉइंट पे मैक्सिमम टच कर सकते हैं, और दो हमारे आ चुके हैं, ठीक है। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Your time starts now. Half the time is over. Good that you have answered. Very good. I am happy to see that your people are answering it. Okay, time up, time up, time up, time up. So again this question, when you see there are n questions, ठीक है, कितने भी हो सकते हैं भाई, n दिया है, n questions. For there are 2 raised to power n minus j students who answered j or more questions wrongly. So मान लीजिए j is equal to 1. So it means student have once answered one question wrong, and you can take, okay, let us say take n is equal to, 1, n is equal to, let us say 5, 5 ले लिया है. So there will be 2 raised to power 4 student who answered one question wrong. If j is equal to 2, so there are 2 raised to power 3 students who answered two questions wrong. 2 raised to power 1, 2, and 2 raised to power 1 and 2 raised to power 0. So j is equal to 5, right? क्योंकि एक ऐसा बच्चा होगा जो बिल्कुल सारे के सारे गलत करेगा. So for n is equal to 5, total number of students is equal to 2 raised to power 4 plus 2 raised to power 3 up to 1. तो ये जो समीशन हो जाएगा, किसका समीशन होगा भाई, a raised to power n minus 1, तो 2 raised to power n minus 1 बन गया, इसका जो सम बनता है हमारा, राइट. 2 raised to power n minus 1 हो गया ये, क्योंकि डिवाइड बाय 2 minus 1 भी आएगा, वो तो कट ही हो जाएगा, तो 2 minus 1 आ गया ये, तो ये हमारा 4095 है. तो 4095 is equal to 2 raised to power n minus 1, so n is equal to 12 from here. 12 क्वेश्चन है. ओके हो गया. रितिमा वर्मा, वी जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कि भाई अगर मेरा J1 है तो कितने बच्चे होंगे जिन्होंने सही आंसर दिया होगा. एक क्वेश्चन गलत किया होगा, बाकी कितने भी ठीक किए हो, J और मोर क्वेश्चंस रॉन्गली, ठीक है ना. सो देयर आर 2 रेज टू पर, राइट. तो इसमें इतने बच्चे हैं जिन्होंने एक से ज्यादा क्वेश्चन, एक या उससे ज्यादा क्वेश्चन गलत किए हैं, ठीक है. तो ऐसे 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 आ जाएगा भाई, तो 2 रेज टू पर एन आ गया. सो टोटल नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर्स, टोटल नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर्स ये आ गया, इतने रॉन्ग आंसर्स हैं, ठीक हो गया. तो ये टोटल आ गया इनका, इनका सबका जो टोटल है दैट इज इक्वल टू 4095. यहां से हमारा निकल आएगा आंसर इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 12. नेक्स्ट क्वेश्चन.
बाकी लोग जिनका आंसर नहीं आता है वो एक्स लिखे, हाँ। और देखो वेदर यू आर एबल टू गेट दिस क्वेश्चन इन 100 सेकेंड्स और नॉट। ठीक है। जो भी बेटा मॉक देते हो ना आप, उसमें तीन तरह से क्वेश्चन को क्लासिफाई किया करो। पहला होता है, मैं बोलता हूँ डबल टिक, मतलब लेस देन 60 सेकंड में क्वेश्चन निपटा दिया। टिक वाला क्वेश्चन वो हो गया 60 से 120 सेकंड लगे। और रॉन्ग क्या है, जिसमें भी 120 सेकंड से ज्यादा टाइम खराब किया वो गलत है आपका, मतलब उसको नहीं लेने का है। सो अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 6 बॉक्स है। ईच बॉक्स इज टू बी फिल्ड विद a राइट और a ग्रीन बॉल। हाँ, at least one box contains a ball and the boxes containing green balls are consecutively numbered। तो ऐसा हो सकता है कि एक ही ग्रीन हो, तो भैया पहला भी ग्रीन हो सकता है, दूसरा भी, तीसरा भी, चौथा भी, पांचवा भी, छठा भी। 6 केस बनते हैं। जब भैया 2 ग्रीन होंगे तो पहला दूसरा ग्रीन हो सकता है, दूसरा तीसरा हो सकता है, तीसरा चौथा, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिवली चाहिए ना सारे। तो ऐसे 5 केस होंगे, राइट। और फिर 4 होंगे, 3 होंगे, 2 होंगे। जब 6 की 6 ग्रीन होंगी तो एक ही केस होगा, राइट। छठ पूजा की आपको बहुत बहुत बधाई। 21 आंसर आ जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ वेज दिस कैन बी डन। ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन जाता है कि भाई दे आर नॉट कॉन्जिक्यूटिव, दे ऑल आर नॉट कॉन्जिक्यूटिव, वो फिर और लंबा हो जाएगा क्वेश्चन, राइट। दे आर ऑल्टरनेट, और लंबा हो जाएगा, है ना, लेयरिंग होगी ना क्वेश्चन की। वेरी गुड, लेट्स डू दिस क्वेश्चन। वेरी गुड, जिन्होंने बहुत जल्दी से आंसर किया बहुत ही बढ़िया बेटा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करते हैं अभी। लेट्स डू दिस क्वेश्चन। आया नहीं अभी तक कोई भी आंसर? देर आर लास्ट 10 सेकेंड्स। चलो बेटा जी, ये क्वेश्चन को कैसे करते हैं देखो। n इज इक्वल टू 1 ले लो। क्या आ गया, a2 इंटू a0 इज इक्वल टू a0 माइनस a2। सो a0 हमारा दिया रही 2, ये भी दिया रही 2। सो व्हाट इज माई a2? 2a2 प्लस a2 इज इक्वल टू 2। सो a2 रही हमारा 2/3। ठीक हो गया, 2/3 हो गई। a2। अब हम देखते हैं व्हाट इज माई a4। a4 क्या आएगा, a3 देखते हैं पहले, a3। तो क्या बनेगा बेटा जी, a3 इंटू a1 इज इक्वल टू a1 माइनस a3। तो a3 कितना आ गया, a1 कितना है 1, तो a3 इज इक्वल टू 1 माइनस a3। सो a3 इज इक्वल टू 1/2। अभी भी कुछ समझ में नहीं आया अपने को, कोई बात नहीं है, a4 देख लीजिए, उसके बाद कहानी समझ में आ जाएगी। a4 क्या हो गया, a4 इंटू a2 इज इक्वल टू
2 माइनस A4 बन जाएगा ये। तो इसको लिखेंगे, क्या बन गया बेटा जी, ये बन गया 2/3 A4 इज इक्वल टू 2/3 माइनस A4, राइट। सो ये हो गया 2/3 डिवाइड बाय 1 प्लस 2/3। सो ये हमारा वर्कआउट हो जाएगा 2/3 इंटू 3/5, ये हो गया 2/5। सो ऊपर लिखता हूं मैं यहाँ पे A0 इज इक्वल टू 2, 1, हमारा आ गया 2/3, 1/2, 2/5। अब देखो, अगर मैं इसको 2 बना दूं तो ये 4 हो जाएगा, इसको 2 बना दूं तो ये 2 हो जाएगा, ये 2 है तो ये 1 आ ही गया। सो कैन यू सी द सिमेट्री, दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4। सो व्हाट विल बी A5? A5 विल बी 2/6। व्हाट विल बी A6? A6 हो जाएगा 2/7। और A1000 क्या होगा बेटा, 2/1001। समझ में आ गया? ठीक हो गया भाई, जल्दी नहीं करना है उसी बांग्ला। हाँ? अभी बहुत सारे लोग इतना इतना कमेंट लिखते हैं कि सर पहले इसमें डिफिकल्टी लग रहा था, अब समझ में आने लगा है। देखो भाई, ये समझ आने में मेरा कंट्रीब्यूशन कम है, आपका कंट्रीब्यूशन ज्यादा है। किसी भी चीज को लेके बैठेंगे, उस पे समय स्पेंड करेंगे ना, वो आपकी हो ही जाएगी। हाँ, ये सब जगह ट्रू है, चाहे वो सब्जेक्ट है, चाहे वो सब्जेक्ट है। ठीक है, सब तरह के सब्जेक्ट में, सब तरह के दोस्तों में समय देने की बात है। मैथ को समय दीजिए, मैथ आपका हो जाएगा। सही दिशा में प्रयत्न करने से आता है। बहुत सारे लोग अभी लिख रहे हैं, सर अलजबरा आने लगा है हमको, हाँ हमें प्रोबेबिलिटी से डर लगता था। किसी भी टॉपिक से डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, जब भी आपको परेशानी होती है, कैट प्रीवियस ईयर देखिए, उसके क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, और उसके बाद फिर अपनी लाइफ बड़े आराम से आप उसका बेसिक कीजिए, अपने आप पकड़ में आएगा। जाएगा कहाँ? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। लास्ट 10 सेकेंड्स। वेरी गुड। देखो भाई, आपका क्या है, जो लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेड स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर है, ये आपको दिया हुआ है 10 का स्क्वायर विच इज 100। और पूछा गया है एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल का ट्वाइस कितना होगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि इसका जो ट्वाइस होगा, दैट विल ऑलवेज बी लेस देन, किससे लेस देन होगा आपका, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर के ट्वाइस से। ठीक है, एमजीएम वाला फंडा लग गया ना भाई। जैसे एल एल जो है, एल इंटू एल, है ना, ये इसका सम वो आ जाएगा ना आपका, एमजीएम वाला फंडा, तो इससे कम होगा। तो इसका ट्वाइस हो गया 200, 200 से ये कम होगी वैल्यू। हाँ, तो एम इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीएम, ये आपका फंडा बहुत जगह यूज हो जाता है कि एम इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीएम।
ठीक हो गया भाई? क्लियर या नॉट क्लियर? ठीक है, क्योंकि ये इंडिविजुअली ले सकते हो। और दूसरा क्या है कि आप इसको मतलब सॉल्व भी कर सकते हो इसको। एक चीज जितनी भी बड़ी ले लोगे बाकी उतनी छोटी होती रहेंगी नहीं, क्योंकि रॉड आ गई है आपकी। ये जो रॉड है, ये क्यूबॉइड का रॉड आपका आ गया है ये वाला। सो तो एल बी एच का एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर आ गया है आपके पास। ठीक है, अब जिसको भी कम ज्यादा करेंगे ये अपने आप आपका अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा उसका। ठीक है, तो बेस्ट क्या रहेगा कि आप तीनों को इक्वली डिवाइड कीजिए। तीनों को इक्वली डिवाइड करेंगे तो क्या आ गया आपका, 10/√3 आ गया। नहीं, क्या आ जाएगा, साइड क्या आ गई, एल क्या आ गया आपका, एल आ जाएगा आपका 10 बाय, क्या होता है, साइड इज इक्वल टू A√3 होता है ना, 10/√3 हो जाएगा ये। ठीक है, और 6A², 6 × 10/100/3, तो ये 200 आ गया। ऐसा भी कर सकते हैं। सर दिस LBH कैन बी 25/2 नहीं, L²B²H² कैसे 2 आ जाएगा निखिल राव? LBH कैसे आ जाएगा? 25 का एक 25 होगी तो दूसरी तो उससे ज्यादा ही होगी ना। इट विल बी LBH, एरिया नहीं है, एरिया तो 1000 हो जाएगा ना बेटा मेरा। अगर मैं इसका वो निकालूंगा वॉल्यूम, ये दिस इज डायगोनल बेसिकली, है ना। डायगोनल इज इक्वल टू 10, तो साइड जो है मेरी जो आ सकती है वो 10/√3 हो सकती है, 10/√3 आ जाएगी। क्योंकि मेरा डायगोनल क्यूब के केस में क्या होता है, A√3 होता है। ठीक है, वहां से भी मैं यूज कर सकता हूँ। ठीक है। ठीक हो गया भाई? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी। किसी का भी आंसर नहीं आया है। थैंक यू वेरी मच। ये वो क्वेश्चन है जो 99% लोग या तो छोड़ देंगे या गलत करके आएंगे। वैसे तो ये क्योंकि आधे लोगों की तो बत्ती गुल हो जाती है क्या देख के, फंक्शन देख के। फंक्शन जैसे ये पढ़ते हैं ना तो उनका नॉन फंक्शनल हो जाते हैं वो लोग। ठीक है, कुछ लोग हैं जो फिबोनाची सीक्वेंस है बिल्कुल सही पकड़े हैं
क्योंकि जब दो को सम करके ये आ जाए तो दो वाला फिबोनाची है। तो क्या बनेगा, 1 1 2 2 1 3 3 2 5 और 5 और 3 जो हो जाएगा वो आपका 8 हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा, ये 21 हो जाएगा, ये 34 हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसे 34 55, हाँ 34 55, इसके बाद आपका 89 हो जाएगा। आई थिंक 144 हो जाएगा, हो रहा है 144। ठीक है, अब आपसे ये F30 पूछ रहा है। ऑब्वियसली आई एम नॉट गोइंग टू कैलकुलेट F30, इट विल बी टू लॉन्ग। और F12 मैं देख सकता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये आ गया है। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं, थोड़ा सा पैटर्न ऑब्जर्व करने वाला है यहाँ पे। क्या पैटर्न ऑब्जर्व करने वाला है, कोई भी दो नंबर ले लीजिए, जैसे इसी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फोर्थ टर्म ले लीजिए, फिफ्थ सिक्स्थ सेवेंथ एट्थ, फोर्थ और एट्थ टर्म का जो कॉमन फैक्टर है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। ठीक है, व्हाट इज दैट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फोर्थ टर्म का और एट्थ टर्म का? व्हाट इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फोर्थ और एट्थ, F4 और F8 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? 3 है ना। इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? 4। तो व्हाट इज F4? 3। टेक एनी अदर नंबर। मैंने 34 ले लिया और 86 ले लिया, ये 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। 6 और 9 का कॉमन फैक्टर क्या है? 3। F3 क्या है? 2। तो ये आ जाएगा, क्योंकि उतनी टर्म्स ऐड होके आ रहा है। तो F30, F12 और F30 का कॉमन फैक्टर क्या होगा? F6 होगा, क्योंकि 6 6 कॉमन है। F6 क्या है? 1 2 3 4 5 6, आंसर शुड बी 8। दीक्षांत ने बिल्कुल सही आंसर बताया है। ठीक है, ये फिबोनाची सीरीज की प्रॉपर्टी है। दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ फिबोनाची सीरीज। गॉट इट एवरीवन? समझ में आया ये नहीं आया क्वेश्चन? मतलब जो आप लेंगे, अगर सपोज करो F100 और F160 का आपको पूछा होता, या 168 का पूछ लेता वो, तो आप देखिए इसमें कॉमन क्या है। इसमें इन 100 और F168 का HCF क्या है? 100 और 168 4 पे जाएंगे, 25 आ जाएगा, या 42 आ जाएगा, आगे नहीं जाएगा तो 4, तो F4 आ गया। F4 कितना होता है? 3, सो 3 इज द आंसर। ये क्वेश्चन करो। There were 10 friends of whom 4 are Sanjay, Salim, Reena and Tina. 6 लोगों का टीम बनाना है भाई। कैसा बनाना है कि रीना टीना को कभी भी नहीं लेना है इकट्ठे।
बट सलीम एंड संजय हमेशा इकट्ठे आएंगे। हाउ मेनी वेज दिस कैन बी डन? ठीक है, तो एस एस आर आर, ठीक है, आर टी, तो इसके हमारे बन जाएंगे एक दो तीन चार, चार केस बनेंगे। कौन कौन सा? एस एस को भी नहीं लिया, रीना को भी नहीं लिया, टीना को भी नहीं लिया। ठीक है, तो ये एक ही केस होगा क्योंकि छह लोग बच गए भाई, छह के छह को ले लेंगे। ठीक है, प्रभात जग्गी वेरी गुड। दूसरा केस क्या बनेगा? एस एस को ले लिया हमने, ठीक है, ना रीना को लिया ना टीना को लिया, रीना टीना को नहीं लेना, एस एस को लेना है। तो ये बन जाएगा 6C4, 6C4, क्योंकि ये दोनों तो आ ही गए, ये दोनों नहीं आए। 6C4 क्या होता है? 15 होता है, तो ये 15 केसेस हो जाएंगे। फिर क्या हो गया? एस एस को ले लिया, रीना टीना में से एक बंदा को ले लिया, ठीक है, और बाकी दूसरे लोग ले लिए। तो एस एस को ले लिया 2 इंटू, एस एस को लिया 2, और नहीं मतलब रीना टीना में से एक ले लिया, तो दो केस हो गए उसके। और ये दो लोग हमने ले लिए, तो 8 बच गए, एक ये आ गया, 9 बच गए, टीना को लेना नहीं है, 6 बच गए। तो 6 में से हमें 3 लोग ही लेने हैं अभी। तो 6C3 होता है बेटा 20, तो ये हो गए 40 केस। अब एस एस को नहीं लेना है, रीना और टीना में से एक को लेना है, तो 2 हो गया इंटू एस एस बाहर हो गए, ये 4 लोग, 6 में से हमें लेने हैं अभी आ, ये 5 लेने हैं, तो 6 केसेस आ गए, तो 12 आ गया। इन सभी को बेटा जी ऐड कर देंगे, तो ये हो गया 68। ये मल्टीपल सिलेक्शंस का परफेक्ट क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया, एकदम मजेदार क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन लगा डाला तो मल्टीपल सिलेक्शंस आपकी बहुत ही उम्दा हो जाएंगी। ठीक हो गया भाई? ठीक है, तो जिन्होंने ये पहली बार किया है ध्यान से करना है, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन डीआईएलआर में भी आ जाता है बहुत बार। ठीक है, मल्टीपल सिलेक्शन का क्वेश्चन है, आपका परमुटेशन कॉम्बिनेशन नुचड़ के आ जाएगा इस क्वेश्चन में, राइट। और जिन्होंने ये किया है बहुत ही अच्छा, हाँ, जिन्होंने पहली बार में खुद से कर लिया, जिन्होंने नहीं किया कोई बात नहीं, अच्छी बात है। ठीक है, और जिन्होंने लाइक नहीं किया वो लाइक कर दो, हाँ हाँ। दिस इज अनदर क्वेश्चन। 2, 2 नंबर रॉन्ग है, चलो देखते हैं। देखो भाई, मान लो पी पेंसिल लेनी थी और एन उनको पेन लेने थे। पेंसिल का प्राइस एक्स है, पेन का प्राइस वाई है। ठीक है, तो पहले पी एक्स एन वाई था, बाद में हो गया उसका क्या हो गया बाद में, माइनस पी वाई प्लस एन एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू 24।
ये हो गया, तो p कॉमन ले लो, x माइनस वाई आ गया, प्लस माइनस n कॉमन ले लो, x माइनस वाई आ गया 24। तो p माइनस n इज इक्वल टू x माइनस वाई इज इक्वल टू 24। अब 24 के फैक्टर क्या क्या बनते हैं, 1 इंटू 24, 2 इंटू 12, 3 इंटू 8, 4 इंटू 6। ये कुछ भी हो सकता है। नंबर ऑफ पेंसिल्स दैट राजू वांटेड टू बाय वाज 8 मोर देन द नंबर ऑफ पेन्स। पेन और पेंसिल का जो डिफरेंस है वो 8 हो सकता है। ठीक है, हो सकता है भाई, क्यों नहीं हो सकता है, दैट डिफरेंस कैन बी 8, नो इश्यूज। नंबर ऑफ पेन्स राजू वांटेड टू बाय वाज 6 लेस देन द पेंसिल। 6 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, ये 7 नहीं हो सकता। अगर यहाँ पे 7 हो जाता ना फिर गड़बड़ हो जाती। पेन कॉस्ट 4 मोर देन ए पेंसिल, ये सब पॉसिबल है। देखो एक 5 पॉसिबल नहीं है, 7 नहीं है, 9, 10, 11 और बाकी ये जो है ये गैप्स पॉसिबल नहीं है। अदर गैप्स आर ऑल पॉसिबल, राइट। क्लियर हो गया भाई, नन ऑफ द अबव आ जाएगा। चलिए, आई होप यू ऑल एंजॉयड, विल ऑल मीट। खुद भी आइएगा, दोस्त बंधु सखा सहेली उनको भी लेके आइएगा। थैंक यू वेरी